Good morning, everyone. How are you all? Good morning, sir. Morning, sir. We are fine, sir. What about you? What about you? I'm also fine, beta. I'm also fine. Thank you. Beta, in today's English class, we have to start a phonics section. In our last English class, we had a vocabulary junction. So, is there any query, any Yes, sir. questions from that section? No, sir. Let me open the No, so sir. that we can discuss and move ahead. In our last class, we discussed vocabulary junction where we talk about the collocations. Collocations के बारे में जानने के साथ साथ में also we discussed these exercises. तो सभी ने कंप्लीट किया इसको? Is there any Yes, question sir. from Yes, you? sir. Yes, sir. No, sir. Sir. Is there any question, beta? No, sir. No. So No, let's start sir. the pronunciation section of this chapter. In this chapter, in the pronunciation junction, we have to work on the sounds. That means whenever I say word sounds, that means we are going to talk about the syllable, because sounds का जो सबसे छोटा यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? Level. तो आपका जो स्लाइवल है syllable, दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं इसको. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? लेट मी चेक. Yes, but I was checking the pronunciation of the syllable. Actually, some of the students has pronounced this syllable. It's not syllable, it's a syllable. Okay? Yes, sir. Yes, sir. It's a syllable. Sir. You have already learnt about word stress. Word stress के बारे में भी already हम लोगों ने पढ़ा है. Along with Yes, sir. syllables. Syllables क्या चीजें हैं? Already you all know. क्या होता है? एक बार फिर से रिपीट करें, कोई बताए? नहीं, मुस्कान अभिषेक के अलावा. ओके, प्राची जायसवाल बताइए बेटा. Sir, smallest unit of sound. Smallest unit of sound. That means कि whenever we talk about the sounds, उसी का कहते हैं syllable is a part. And now what is stress? Stress क्या है? बेटा स्ट्रेस क्या है? What is stress? Stress means क्या हुआ? What you are supposed to do while you are asking to do, while you are asking for stress, while pronouncing in a particular word. जब कोई पर्टिकुलर वर्ड आपको प्रोनाउंस करने के लिए, रीड करने के लिए बोला जाता है और किसी पर्टिकुलर साउंड्स को आपको स्ट्रेस करने के लिए बोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा? अभिषेक यादव, गौरव तिवारी बताइए आप. गौरव. यस सर. सर जब किसी वर्ड को रीड करेंगे तो उसमें जो वर्ड मेन रहेगा उसको थोड़ा लंबा खींच कर ले जाना है. किसी वर्ड को रीड करेंगे तो उसी में से कई सारे वर्ड्स हो जाएंगे. इन सिंगल वर्ड्स ओनली दैट वर्ड इज ओनली. उसमें लेटर्स हो सकते हैं और मैं वर्ड और लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस. दैट मीन्स कि स्ट्रेस भी आपका कहने के साउंड से रिलेटेड है. अभिषेक यादव बताइए जरा, व्हाट डू यू नो अबाउट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू व्हाइल. So in stress, be focus on the most of the words of the word. Your voice is not which, proper. Your voice is not clear. You should use mic near your mouth. Yes. Sir, in stress, be focus on the stress part of the word. ठीक है बेटा, कहीं ना कहीं स्ट्रेस क्या है? जब आप कहीं पे फोकस करते हैं. ठीक है सर. आप किसी पर्टिकुलर साउंड्स को ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस. उसी को स्ट्रेस कहा जाता है. दैट मीन्स अगर आप वन मोर थिंग, इन अ पर्टिकुलर वर्ड्स हाउ मेनी सिलेबल इज देयर? सिलेबल कितने हो सकते हैं?
हाँ बताइए कोई भी जल्दी से, बिकॉज सो दैट दे कैन स्टार्ट. अब जल्दी जल्दी बताइए. यू डू Sir, नॉट one or सपोज one टू रेज more योर than हैंड. one. Sir, कितना हो one सकता है? or more than one. ओके वेट. सिलेबल कई सारे हो सकते हैं, बट एक ये भी ऑलरेडी इट हैज बीन टोल्ड दैट कि ओनली सिंगल सिलेबल कैन बी एम्फसाइज्ड इन अ वर्ड. वर्ड्स में तो एक से ज्यादा भी सिलेबल हो सकते हैं, बट ओनली वन सिलेबल कैन बी एम्फसाइज्ड. बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई सारे सिलेबल स्ट्रेस ही नहीं किए जाते. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर वर्ड्स में सिलेबल स्ट्रेस किए जाएं, ये कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट कि in which words, in which type of words we have to emphasize on a syllable. Yeah, there are also many some of the words where we are not supposed to emphasize, we are not supposed to stress on that particular syllable. तो वो दो टाइप के आपके जो वर्ड्स है, दैट इज कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स. तो कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि जो कंटेंट वर्ड्स है, अब कंटेंट वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, फंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, आपको ये समझना है. देयर आफ्टर ऑल्सो यू बी नोइंग दैट कि कंटेंट वर्ड्स पे ही हम केवल स्ट्रेस देंगे. अगर फंक्शन वर्ड्स है, वी आर नॉट सपोज टू गिव द स्ट्रेस. फिलहाल शुरू से आपकी बुक के चैप्टर से शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप. डिड यू स्ट्रेस ऑन ईच वर्ड? देयर इज अ क्वेश्चन, डिड यू स्ट्रेस ऑन ईच वर्ड. लेट्स से आपने यही क्वेश्चन ही पढ़ा, डिड यू स्ट्रेस ऑन ईच वर्ड. इसमें आप क्या सभी वर्ड्स पे आप स्ट्रेस दे रहे हैं, सभी वर्ड्स को आप एम्फसाइज मतलब फोकस कर रहे हैं? No, sir. किस पे आपने फोकस किया? Where you have On the stress. Did you stress on each word? किस पे आपने फोकस किया? Only stress, word पे नहीं किया. Did you stress on each word? Word. That means word में आपने वहां पे ज्यादा एम्फसाइज किया. स्ट्रेस ईच में आपने नहीं, ईच में क्या नहीं आपने एम्फसाइज किया, ईच. डिड यू स्ट्रेस. अब डिड यू मतलब डिड यू में एक साथ इतना फ्लो में आपने बोला कि आपको कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं डिड यू. अगर आप पर्टिकुलर वर्ड बोल रहे हैं तब तो आपका एक तरीके से सिलेबल को आप अलग अलग तरीके से मतलब कहीं ना कहीं कैटेगराइज यानी वहां पे ज्यादा एलेबोरेट कर रहे हैं. बट व्हेनेवर यू आर रीडिंग अ सेंटेंस, जब आप एक सेंटेंस रीड करते हैं तब क्या होता है, आप सारे वर्ड्स को नहीं एम्फसाइज करते, सारे वर्ड्स पे आप स्ट्रेस नहीं देते. कुछ ही वर्ड्स होता है जिसपे आप स्ट्रेस देते हैं. वो क्या वर्ड्स हैं? वी वुड बी टॉकिंग. स्ट्रेसिंग ऑन एवरी वर्ड मेक्स स्पीच एंड अननेचुरल. अभी हम एक बार स्ट्रेस दे करके देखते हैं. अभी डिड पे भी अगर आप स्ट्रेस देंगे क्या होगा? डिड यू स्ट्रेस ऑन ईच वर्ड. अगर इस तरीके से सेंटेंस को पढ़ें तो क्या होगा? स्ट्रेसिंग ऑन एवरी वर्ड. अभी मैंने क्या किया? सारे वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया. तो स्ट्रेसिंग ऑन एवरी वर्ड मेक्स स्पीच साउंड एंड अननेचुरल. कहीं ना कहीं जब सारे वर्ड्स पे जब आप स्ट्रेस करते हैं तो आपका जो स्पीच है, आपका जो साउंड्स है, आपका जो बोलने का जो वे है, वो कहीं ना कहीं अननेचुरल, अप्राकृतिक बना देता है, जो कि समझने के लिए भी मुश्किल होता है और कहीं ना कहीं सुनने में भी अच्छा नहीं लगता. सो द फोकस ऑफ स्ट्रेस, द फोकस ऑफ स्ट्रेस. अब द फोकस ऑफ स्ट्रेस, अब दा पे तो नहीं स्ट्रेस किया गया. द फोकस, दा छोड़ के तुरंत फोकस पे आप हैं, ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं. दैट मीन द फोकस ऑफ स्ट्रेस. अब स्ट्रेस पे, अब इन्हीं तीनों वर्ड्स की अगर बात करें तो फोकस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है, स्ट्रेस पे को स्ट्रेस दिया जा रहा है, बट आप और दा को नहीं किया जा रहा है. द फोकस ऑफ स्ट्रेस गेट शिफ्टेड फ्रॉम द वर्ड लेवल टू द सेंटेंस लेवल. एक्चुअल में होता क्या है, जब फोकस ऑफ स्ट्रेस का जो फोकस होता है, ये कहीं ना कहीं सेंटेंस लेवल पे आपका मूव कर जाता है, शिफ्ट कर जाता है. इन एवरी सेंटेंस देयर आर कंटेंट वर्ड्स. हर तरह के सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, इन एवरी सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंसेस में देयर आर सम कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स. या तो कुछ कंटेंट वर्ड्स होंगे या तो फंक्शन वर्ड्स होंगे, दो ही तरह के वर्ड्स होंगे. बेटा आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड्स. ध्यान देना, ये कभी भी लिखने, राइटिंग या ग्रामर की बातें नहीं हो रही है, अभी ये साउंड्स की बातें हो रही है.
आपको जो ये सारी चीजें यहाँ पे जितने भी टिप्स पढ़ाए जा रहे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में, इसको आपको बोलते समय आपको यूटिलाइज करना है। कितना मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर ले जाते हैं ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। इन एवरी सेंटेंस देयर आर कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स। सभी हर तरह के सेंटेंस में कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स दोनों होते हैं। कंटेंट वर्ड्स कैरी मीनिंग एंड कंटेन द मैसेज ऑफ द सेंटेंस। जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे कैरी मीनिंग एंड द कंटेन द मैसेज ऑफ द सेंटेंस। कंटेंट वर्ड्स कहीं ना कहीं सेंटेंस की मीनिंग और जो मैसेज है उसको कंटेन किए रहते हैं। दैट मीन्स कि अगर कंटेंट मैसेज अगर ना रहे तो यानी अगर कंटेंट वर्ड्स अगर हटा दिया जाए उस सेंटेंस में तो यानी उस सेंटेंस का मीनिंग भी गायब हो जाएगा और उसका मैसेज भी, ये पता भी नहीं चलेगा कि क्या कहा जा रहा है। ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। दैट मीन्स कि कंटेंट वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट। फिलहाल कंटेंट वर्ड्स कैरी मीनिंग एंड कंटेन द मैसेज ऑफ द सेंटेंस। बट फंक्शन वर्ड्स, जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, फंक्शन वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। जो फंक्शन वर्ड्स होते हैं ये आपके सेंटेंस को ग्रामेटिकली केवल करेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। दैट मीन्स अगर फंक्शन वर्ड्स हटा दिए जाए तो भी आप कम से कम थोड़ा बहुत तो जान जाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। मीनिंग ऑफ द Yes, पीपल sir. स्पीक फ्लुएंटली, उसमें बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, बट फंक्शन वर्ड्स आपका वहां पे मिसिंग रहता है, ग्रामेटिकली वो एरर होते हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं फंक्शन वर्ड्स का यूज किए रहते हैं या गलत किए रहते हैं या तो नहीं भी यूज किए रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बातें समझ में आती है ना, बिकॉज जो कंटेंट वर्ड्स है मेन वो आपका मैसेज कैरी करता है। इन स्पीच कंटेंट वर्ड्स आर स्ट्रेस्ड व्हाइल फंक्शन वर्ड्स आर नॉट। जब बोलते समय, am I audible to you all? In speech, while speaking, in speech content words are stressed। बोलते समय या रीडिंग करते समय ही मान के चलिए, whenever you speak you are supposed to stress on the content words while function words are not। जबकि फंक्शन वर्ड्स होते हैं इस पे स्ट्रेस नहीं दिया जाता। अब ये फंक्शन वर्ड्स कंटेंट वर्ड्स होते कौन कौन से हैं इसको जानने की जरूरत है। देयर आर अ टेबल, एक टेबल दिया हुआ है एंड इन द लेफ्ट कॉलम देयर these are come into the column of content words। यानी if I talk about the noun or main verbs or adjective, adverb, negatives, these words would be considered as a content word। but whenever we are going to read pronoun words or any auxiliary verbs, whenever we are going to read an article or conjunctions or prepositions, these types of words would be considered as a function words। अभी आपको ध्यान में क्या रखना है, जो ये आपका जो इस तरह के वर्ड्स हैं pronoun, auxiliary, article या conjunctions या prepositions, जब ये फंक्शन वर्ड्स हैं तो क्या फंक्शन वर्ड्स पे आपको स्ट्रेस करना है? No, sir. No, we have to emphasize, we have to stress only on the content words। and content words कौन कौन से होते हैं? noun, main verbs, adjective, adverb, negative। okay, अब negative में जैसे not हुआ Yes, sir. तो you have to emphasize on not, you have to give the stress on not। okay, in the same way adverbs आप लोग पहचानते हैं Sir. पूरा पार्ट्स ऑफ Yes, sir. जिसका नहीं क्लियर है, जो नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शंस, प्रपोजिशंस नहीं पहचान पा रहा है, वो ये कैसे जान पाएगा कि किस वर्ड पे आपको स्ट्रेस देना है, किस वर्ड्स पे नहीं देना है? ये मुश्किल होने लगेगा। सो व्हाट आई विल डू, आई विल आस्क सम ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम यू ऑल for each type of parts of speech। how many parts of speech are there? how many parts of speech? 8। क्यों 8. 8 कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को आपको मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स, दो तरह के वर्ब्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे। बट आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में केवल वर्ब ही तो होता है। Yes, sir. मेन वर्ब और ऑक्सिलरी Yes, वर्ब sir. में डिफरेंस क्या है, पता है कि नहीं? Yes, sir. क्या होता है बताइए जरा सबको। Sir, main verbs are such verb that do the work of, that show the work of the subject, and auxiliary verbs are
was, is, am, are, etc. बेटा होता क्या है, वर्ब को देख करके कहीं ना कहीं आप लोग टेंस का भी पता लगाते हैं, ऐसा होता है कि नहीं? आप इज एम आर या वाज वर हैज हैव यही सब पूछते हैं, उसी से पता बता देते हैं कि वेदर दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। अगर विल है तो तुरंत ही आप बोलेंगे शायद ये फ्यूचर हो, मतलब 100% गारंटी नहीं, बट कहीं ना कहीं मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मेनी पर्संस फाइंड द वर्ब्स, वर्ब ही यूज करके वो कहीं ना कहीं टेंस का पता लगाते हैं। सही है ना? अब वर्ब में आपका दो तरह के Yes, वर्ब हैं, आपका ऑक्सिलरी Yes, वर्ब्स, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। कई बार ऐसा भी होता है, लेट्स से कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, नहीं तो लेट्स से कि पास्ट इंडेफिनिट का, ही वेंट टू द मार्केट, तो आपने बोला ही वेंट टू द मार्केट, तो आपको पता कैसे चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट है? वेंट को देख करके ना। Yes, sir. तो दैट Yes, मीन्स sir. वर्ब को आप देखते हैं, वर्ब से ही पता लगता है कि ये कौन से टेंस में है। ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, वाज को देख करके पता चला ये कौन से टेंस में है। तो टेंस की पहचान आपका उसके वर्ब से करते हैं कि नहीं? Yes, sir. अब वर्ब भी दो तरीके के होते हैं, एक आपका मेन वर्ब, एक आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स। होता क्या है, जो मेन वर्ब्स हैं आपको सिंपल लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो सब भूल जाइए। अगर आपको समझना है मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफरेंस क्या है, तो मेन वर्ब्स जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो कि आपका सब्जेक्ट कर रहा होता है, द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ये मेन वर्ब्स क्या होता है, ये एक ऐसा एक्शन है जो कि सब्जेक्ट द्वारा किया गया होता है। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्य नहीं हो रहा होगा उस सेंटेंस में। मैंने बोल दिया राम इज अ गुड बॉय, तो व्हाट इज वर्क इज हैपनिंग इन दिस सेंटेंस? Nothing. राम इज अ गुड बॉय, लेकिन इज को देख करके आप बताए कहेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, वर्ब को ही देखा गया ना, लेकिन इज क्या है? Yes, sir. ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। Yes, sir. यानी वर्ब को देख करके आप टेंस का पता लगाते हैं। मेन वर्ब आपका कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर सेंटेंस में आपका मेन एक्शन जो है परफॉर्म हो रहा होता है, उसी को ही कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब जो होते हैं ये आपके ग्रामेटिकली सही करने के लिए, बैलेंस्ड सेंटेंस को बैलेंस करने के लिए बी यूज दीज ऑक्सिलरी वर्ब। ये हर टेंस के अकॉर्डिंगली अलग अलग ऑक्सिलरी वर्ब से, टेंस के अकॉर्डिंगली वी यूज ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफरेंस या पहचान ले जाएंगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes. देर आफ्टर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होते हैं? रत्नेश तिवारी बताइए आप। Are the word noun or ऐसे वर्ड्स जो नाउन या प्रोनाउन को की विशेषता बताए। Yes, The sir. words that qualify noun or pronoun is called the adjective. But adverbs क्या होते हैं? जो verb को qualify करे, यानी जो उसके क्रिया की विशेषता बताए, उसके कार्य की विशेषता बताए कि किस तरह का कार्य के बारे में बताई। यानी एडजेक्टिव क्या होगा? नाउन या प्रोनाउन के बारे में बता रहा होगा, बट जो एडवर्ब है ये कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में बता रहा होगा, या तो एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा हो सकता है एडवर्ब। ओके, Yes, sir. आर्टिकल आपको पता है? Yes, sir. Is, am, are. कंजक्शंस, कंजक्शंस No, पता है? कंजक्शंस आर अदर वर्ड्स। कंजक्शन क्या कहलाते हैं? काव्यांशु पांडे आप बताइए, व्हाट आर कंजक्शंस वर्ड? some that join a sentence? दैट वर्ड्स दैट यूज्ड टू जॉइन द सेंटेंसेस। यही होगा या कुछ और होगा? क्यों अभिषेक यादव? Correct है. वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू जॉइन द सेंटेंसेस। दो अलग अलग Yes. सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे एंड, बिफोर, आफ्टर, और मेनी वर्ड्स आर देयर। नेगेटिव आपका नॉट, जैसे डू नॉट आप कहते हैं, डिड नॉट कहते हैं, तो डिड तो आपका क्या है? डू नॉट अगर आपने बोला तो डू क्या है? डू क्या निगेटिव है? निगेटिव वर्ड है? no, sir. क्या No, है? sir. No. Sir, verb. वर्ब है। डू आपका वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। ये आपका Yes, sir. डू आपका ऐसा वर्ब नहीं है जो काम हो रहा हो, वहां पे कोई एक्शन नहीं बता रहा है, एक्शन वर्ड नहीं है, बट इट्स अ वर्ब। तो एक्शन वर्ड नहीं है फिर भी वर्ब है, तो इसका मतलब ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो डू इज अ ऑक्सिलरी वर्ब बट नॉट इज अ नेगेटिव। प्रीपोजिशंस क्या है? सभी को पता होगा आई होप।
Yes, sir. टेबल इस कंटेंट के, इस टेबल के अकॉर्डिंगली वी हैव टू एम्फेसाइज ऑन वर्ड्स. इफ यू रिमूव द फंक्शन वर्ड्स, अगर आप फंक्शन वर्ड्स को रिमूव कर दें फ्रॉम अ सेंटेंस, यू विल प्रोबेबली स्टिल अंडरस्टैंड द सेंटेंस. शायद आप फिर भी सेंटेंस को समझ जाएं. वही बात जो अभी ऑलरेडी मैंने बताया था कि अगर आप फंक्शन वर्ड्स को, यानी इस फंक्शन वर्ड यानी प्रोनाउन, ऑक्सिलरी वर्ब, आर्टिकल्स, इन सबको अगर हटा दें तो भी आप शायद सेंटेंस को समझ जाएं. बट इफ यू रिमूव द कंटेंट वर्ड्स फ्रॉम अ सेंटेंस, लेकिन अगर आप सेंटेंस से कंटेंट वर्ड्स को हटा दें, then you will not understand the sentence. The sentence will have no sense or meaning, क्योंकि जो कंटेंट वर्ड्स होते हैं वही उस सेंटेंस की मीनिंग या मैसेज को कैरी करते हैं. जब आप उसी को हटा देंगे तो कैसे आप उसका सेंस निकालेंगे, कैसे मीनिंग निकालेंगे आप? तो इट नाउ इट इज क्लियर कि कंटेंट वर्ड्स कौन कौन से होंगे, फंक्शन वर्ड्स कौन कौन से होंगे. Yes, sir. Yes, sir. कुछ लाइंस भी पढ़ते हैं, आपके पोएम से ही है. आई डोंट ट्रेवल बाय रिक्शा. अब यहाँ पे बोलता है आई डोंट, आई तो नहीं बोलते ना कि आई डू नॉट ट्रेवल बाय रिक्शा. तो आई डोंट ही तो डायरेक्टली बोलते हैं, तो दैट मीन्स कि आई डोंट या आई डू नॉट. तो डू पे आप ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं या नॉट पे फोकस कर रहे हैं? Sir, not pay. नॉट. आई डू नॉट. आप कहीं ना कहीं नॉट को बोलने में थोड़ा सा समय भी ले रहे हैं. दैट मीन्स कि यू आर ट्राइंग टू Yes, स्ट्रेस ऑन द नॉट. दैट इज करेक्ट. आई आपका प्रोनाउन वर्ड है, डू आपका ऑक्सिलरी वर्ब है. तो दैट मीन्स यहाँ पे हमें एम्फसाइज भी नहीं किया जा सकता, एम्फसाइज करना भी नहीं चाहिए. नॉट इज बीइंग स्ट्रेस्ड हियर. ट्रैवल, आई डू नॉट ट्रैवल बाय रिक्शा. ट्रैवल बाय रिक्शा. अब ये ट्रैवल क्या है? Main verb. मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे यही काम हो रहा है. तो दैट मीन्स कि ट्रैवल को तो आप बोल रहे हैं ट्रैवल. ट्रैवल में एक सिलेबल आप एम्फसाइज कर रहे हैं. किस सिलेबल पे? हाउ मेनी सिलेबल इज देयर इन द वर्ड ट्रैवल? Sir, 2. तो आप पहले कौन से, ट्राई या वेल, किस पे आप फोकस कर रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं? Sir, 3. बाय रिक्शा. रिक्शा में हाउ मेनी सिलेबल इज देयर? 2. Sir, to travel. Rickshaw. That means कि shaw is being emphasized here. I do not Yes, sir. travel by rickshaw. Rickshaw. So shaw is getting emphasized here. Okay. That means कि आपका यहाँ पे Yes, साउंड्स yes, पे ही sir. फोकस किया जा रहा है. Travel and rickshaw or not. 3 words are getting stressed, getting emphasized in this sentence. Others are not. Why? अब ये सिंगल वर्ड्स है, कोई सेंटेंस नहीं है. कहीं ना कहीं आप वाई, तो आपके जो टेबल दिया है उसमें तो नहीं किया गया है कि क्वेश्चन वर्ड्स को एम्फसाइज किया जाता है या नहीं, बट अमूमन किया जाता है. इट इज अ सिन टू राइड ऑन द रिक्शा. इट्स अ सिन. इट इज अ सिन. अब इट इज अ सिन. अब इट इज अ सिन आप ऐसे तो बोलो ना, इट इज अ सिन टू राइड ऑन रिक्शा. इट इज अ सिन. अगर आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो आप इसको पढ़ेंगे कैसे? इट इज अ सिन टू राइड ऑन रिक्शा. आप ऐसे तो नहीं पढ़ेंगे इट इज अ सिन टू राइड ऑन रिक्शा. अगर ऐसे एक साथ पढ़ेंगे तो क्या सेंटेंस का मीनिंग तो, सेंस तो खराब हो जा रहा है ना. Yes, sir. आप करते इट इज अ सिन टू राइड ऑन रिक्शा. दैट मीन्स कि इट इज अ सिन. सिन पे आप एम्फसाइज कर रहे हैं, सिन पे आप थोड़ा सा रुक भी रहे हैं. टू राइड, राइड में भी आपने एम्फसाइज किया ऑन रिक्शा. इट इज अ सिन टू राइड ऑन अ रिक्शा. तो दैट मीन्स कि सिन आर गेटिंग एम्फसाइज. राइड भी यहाँ पे एम्फसाइज किया जा रहा है, रिक्शा भी, इस रिक्शा पे भी स्ट्रेस दिया जा रहा है. ओके. कुछ Yes, एग्जांपल्स sir. आपके यहाँ पे और भी दिए हैं. Yes, जिन sir. वर्ड्स को एम्फसाइज किया गया है, जिन वर्ड्स पे स्ट्रेस किया गया है, उसको कैपिटल लेटर में लिखा गया है. और आप देखेंगे ध्यान से, देन यू वुड बी गेटिंग दैट कि ऑल द वर्ड्स दैट इज रिटन इन द कैपिटल, दैट इज रिटन इन द अपर केसेस, या तो वो आपके कहीं ना कहीं कंटेंट वर्ड ही होंगे. वो नाउन होगा या मेन वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा या नेगेटिव होगा. बस चेक करते हैं. अजमल क्या है? प्रशांत. बेटा ओनली 5 मिनट इज रिमेनिंग. तो अब जो बच्चे नहीं बोलेंगे उनका वेट नहीं करेंगे. एवरीबडी कैन Name. क्वेश्चन पुट अप करूंगा, जल्दी जल्दी आप बताइए सो दैट दे कैन कंप्लीट. Sir, noun. इट इज रिमेनिंग. अजमल इज अ Sir, noun. बॉट. बॉट मीन्स होता है खरीदना, यानी अजमल Main- बॉट, यानी बॉट इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अजमल ने खरीदा. ये बॉट क्या है?
Main verb. मेन वर्ब है, मेन आपको वर्ब। खरीदने का काम हो रहा है, वही उसी काम को ये वर्ड बता रहा है। अजमल बॉट, अजमल इज अ नाउन वर्ड, बॉट इज अ मेन वर्ब, आ आपका आर्टिकल है। लार्ज स्पाउलिंग हाउस, ये लार्ज स्पाउलिंग हाउस क्या हो गया? ये हाउस तो आपका नाउन हो गया, किसी चीज का नाम, किसी थिंग्स का नाम। अब हाउस के बारे में कौन बता रहा है? लार्ज स्पाउलिंग, स्पाउलिंग ही तो बता रहा है। Yes, sir. तो दैट मींस कि ये Yes, sir. क्या हुआ? दिस इज स्पाउलिंग इज अ Adjective. एडजेक्टिव। लार्ज क्या है? एडजेक्टिव। लार्ज क्या है? लग्जरी वर्ब। ये एडवर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। ये ऑक्सिलरी वर्ब का आप तो आपका गिने चुने हैं, वो तो रटे रटाए हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, डू, डिड, ये सारे तो है। लार्ज आपका बी का फॉर्म भी आता है ऑक्सिलरी वर्ब में। लार्ज स्पाउलिंग हाउस, लार्ज आपका स्पाउलिंग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, स्पाउलिंग को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। तो दैट मींस कि लार्ज इज Yes, sir. एडवर्ब। इन द शब्द, तो इन द आपका इन प्रीपोजिशन वर्ड्स, द आपका आर्टिकल है, ये आपका नाउन हो सकता है। तो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन एंड नाउन, यही तो एम्फसाइज किया जा रहा है। Yes, sir. एक बार सेकंड Yes, सेंटेंस sir. पढ़िए, मुस्कान यादव जरा पढ़िए सेकंड सेंटेंस को जल्दी से। They saw an extremely On large नहीं, house. और रुक रुक के नहीं पूरा And- सेंटेंस पढ़ा जाता है, वैसे पढ़िए, परेशान मत होइए। They saw an extremely large hound near the old mansion. चलिए, they saw an extremely large hound, they saw an extremely large hound। अब एक्सट्रीमली पे भी फोकस किया जा रहा है, लार्ज पे भी फोकस किया जा रहा है, हाउंड पे भी फोकस किया जा रहा है। नियर द ओल्ड मैंशन, नियर द तो जल्दी खत्म कर दिया गया, बट ओल्ड मैंशन, ओल्ड पे भी आपको यहाँ पे एम्फसाइज कर रहा है, मैंशन पे भी फोकस कर रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, दे तो आपका प्रोनाउन वर्ड है, बट सॉ आपका मेन वर्ब है, उन्होंने देखा, ये आपका आर्टिकल है। एक्सट्रीमली लार्ज हाउंड, हाउंड आपका एक नाउन हो गया, लार्ज आपका एडजेक्टिव हो गया, एक्सट्रीमली मतलब एडवर्ब। Yes, आपका sir. प्रीपोजिशन वर्ड हो गया, द आर्टिकल हो गया, ओल्ड मैंशन, ये एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो सारे वर्ड्स को कौन कौन से वर्ड किस तरह के किस वर्ड्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ड्स हैं, ये तो पहचान ले जा रहे हैं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो इसी के हिसाब से जो आपका ऑपरेशन, जो आपका कंटेंट वर्ड्स होंगे वहां उस पे आपको एम्फसाइज करना है, जो फंक्शन वर्ड्स होंगे उस पे नहीं एम्फसाइज करना है। ओनली 2 मिनट्स इज रिमेनिंग, इसलिए जल्दी से थर्ड और फोर्थ भी जल्दी से पढ़ते हैं। अक्षय बॉट अ बुक, अक्षय बॉट अ बुक, अक्षय बॉट, अक्षय को भी आप बता रहे हैं, एम्फसाइज कर रहे हैं, बॉट को भी कर रहे हैं। अ बुक, अ बुक मतलब आ शुरू खत्म नहीं किया, बुक शुरू हो गया। बुक, एन इंक, पेन, अ बॉटल ऑफ इंक, अ बॉटल ऑफ इंक, a bottle of ink, and an eraser। अच्छा, bought a book, an ink pen, a bottle of ink, and an eraser। तो जितने भी नाउन या आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब या मीन वर्ब होंगे, ये यहाँ पे एम्फसाइज किए जा रहे हैं। इन द सेम वे आपको फोर्थ एंड फिफ्थ सेंटेंस में भी है। बेटा नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट, आपका इसी सेक्शन में बुक ए में और बुक बी और बुक सी में आपकी एक्सरसाइजेस भी हैं, यू हैव टू डू। यहाँ पे बुक बी में आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं, देयर आर 10 सेंटेंसेस, यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स। आपको अंडरलाइन करना है जिस वर्ड्स को आप स्ट्रेस दे रहे हो। तो क्या आर को स्ट्रेस तो देंगे नहीं, यू को देंगे नहीं, इंटरेस्टेड को तो देंगे, तो इंटरेस्टेड को आपको अंडरलाइन करना है। यानी जो भी आपके फंक्शन वर्ड्स एक तरीके, जो भी आपके कंटेंट वर्ड्स हैं, कंटेंट वर्ड्स को आप एक तरीके से अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आप उसी पे ही स्ट्रेस देंगे। ओके, और फिर उसको प्रॉपर्ली रीड करके प्रैक्टिस भी करिएगा प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करने की। दिस इज द टास्क फॉर टुडे। इसको कंप्लीट कर ले जाएंगे ना? Yes, sir. Yes, sir. सीन में देयर इज वन मोर एक्टिविटी इन बुक सी। बुक सी वाली एक्टिविटी बहुत ही आसान नहीं है, उस पर थोड़ा सा आपको वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पहला यहाँ पे देखिए क्या है, एक सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस में क्या है, यू से आपका ये आर्टिकल है, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनस्ट्रेस्ड है। डॉग आपका नाउन है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस वर्ड है। ये चेंज्ड आपका मेन वर्ब है, स्ट्रेस वर्ड है। एक काम करिए सभी लोग, तो 8:51 हो चुका है, आप लोग तुरंत का तुरंत दोबारा ज्वाइन करिए, इसको भी मैं समझा दूं सो दैट यू कैन कंप्लीट इट नाउ। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा सेक्शन शुरू करना चाहूंगा, बिकॉज ऑल्सो वी हैव टू लुक इनटू द सिलेबस। चेंज्ड आपका मेन वर्ब है, यू आपका दा आपका अनस्ट्रेस है, कैट
आपका नाउन है इसलिए यहाँ पे स्ट्रेस किया जा रहा है। थ्रो आपका अनस्ट्रेस्ड है, द आपका अनस्ट्रेस्ड है, हॉल आपका नाउन है, ये स्ट्रेस्ड वर्ड है, यू आपका अनस्ट्रेस्ड वर्ड है, इनटू आपका अनस्ट्रेस्ड है क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, द फिर से अनस्ट्रेस्ड है, बट किचन आपका स्ट्रेस वर्ड है। तो आपको यहाँ पे कुछ जो स्ट्रेस पैटर्न्स दिया है, स्ट्रेस पैटर्न के अकॉर्डिंगली आपको सेंटेंस लिखना है। दिस इज द टास्क। ओके